In this video, I'm going to explain the poem Rain on the Roof, written by Court Skinny, along with all the poetic devices. Okay, let's have a look at the introduction of the poem before the explanation, right? In the poem, the poet expresses his love for nature and praises the healing power of rain. इस पूरी पोएम में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पोइट जो है वो नेचर को एडमायर कर रहे हैं और किस तरह से जो फॉलिंग रेन जो साउंड है फॉलिंग रेन का वो किस तरह से उनको उनकी मेमोरीज़ को रिवाइव कर रहा है। यही सब कुछ हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। सो रेन ऑन द रूफ इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एज टाइटल as it is suggestive of the childhood memories of the poet has of rain। मतलब जितनी भी memories हैं poet की childhood memories जो भी हैं वो सब किसके साथ में relate करती है, उसे poet जो है वो co-relate कर रहे हैं rain के साथ में, है ना, the sound of rain। The rain has magic like an effect on him, on the poet, every time it falls on his room, especially when he hears the rain from a cozy bed in his bedroom। तो एक मैजिक है पोइट के लिए जब भी वो इसकी आवाज़ को सुनते हैं, स्पेशली जब वो अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब वो उस रेन की आवाज़ को सुन रहे हैं तो किस तरह का एक मैजिक इफ़ेक्ट उन पर हो रहा है, तो वही हमें पोइट बताते हैं। इट ट्रिगर्स द पोइट्स पास्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज कम अलाइव। In particular, the memories of the poet's mother putting her children to sleep at night, indelible in his mind। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो कभी ख़त्म ही नहीं, वो मेमोरी कौन सी है, वो उनकी मदर की है। जब पोइट को और उनके मतलब जो सिबलिंग्स हैं उनको जब वो सुलाती थी उनकी मदर नाइट में। एंड द रेन thus soothes and comforts an overworked or busy mind by taking it back to the लवली पास्ट। तो यहाँ पर जो पोइट हैं जो कि बहुत बिज़ी रहते हैं और ओवरवर्कड है उनका माइंड, मतलब बहुत बिज़ी जब वो रहते हैं, तो ये जो रेन है वो उनको कंफर्ट करती है और उन्हें कहाँ ले जाती है, उनकी लवली पास्ट में। ओके, नाउ अबाउट द पोइट। कोट स्किनी, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम द रेन ऑन द रूफ, was a lawyer, politician, journalist and poet from the United States, means he belonged to America. Coates Kinney was born in 1826 near Panyan, New York. Okay. Of his verses, The Rain on the Roof, which was set to music, was the most popular। मीन्स जितनी भी इनका राइटिंग वर्क है, जो भी पोएम्स इन्होंने लिखी है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर फेमस कुछ रही है तो वो है द रेन ऑन द रूफ, एंड ही डाइड इन ओहियो इन 1904। ओके, start the poem Rain on the Roof. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy beings start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years gone to regard the darling drummers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Let's read stanza 1. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Let's discuss the word meaning of this stanza. When the humid shadows hover means move around something. Okay, and starry spheres means sky full of stars. Melancholy means sad. Bliss means happiness. Cottage chamber means bedroom.
and patter means sound of raindrops falling on the roof. See the explanation. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid means full of moisture, full of water. Here shadows refer to clouds. Hover means move around something. And starry spheres means sky full of stars. Okay. So in the first stanza, what the poet gives us a description of the scene outside of his room. Here, humid shadows refer to dark clouds which are full of water or which are about to bring rain. Uh, at night time, when the sky is full of stars, at that time, huge clouds full of moisture move around in the sky. तो यहाँ पर जो भी हमें क्या बता रहे हैं स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में कि नाइट टाइम है और द स्काई इज़ फुल विद स्टार्स, फुल ऑफ स्टार्स हैं, मतलब बहुत मतलब क्लियर नाइट है। तभी क्या होता है कि जो डार्क क्लाउड्स हैं फुल ऑफ वाटर वो होवर करने लग जाते हैं, जस्ट दे मूव अराउंड इन द स्काई एंड इट मीन्स इट इज़ अबाउट टू रेन, कि बस बारिश होने ही वाली है। तो ये जो सीन है ये हमें 2 लाइन्स में पता चलता है कि बाहर जो है स्काई फुल ऑफ स्टार्स है और अचानक से जो बादल हैं वो आते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब बारिश होने वाली है। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Melancholy means sad, दुखी। ओके, एंड डार्कनेस रेफर्स टू नाइट, और जो डार्कनेस है इसका मतलब है नाइट से। फाइन। हियर द पोइट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स। यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ना, एक तरह से आप मेटाफर कह सकते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं किसे, रेन ड्रॉप को टीयर्स से, आंसुओं से। एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई मीन्स द नाइट विच इज़ वेरी सैड, इट सीम्स एज इफ इट इज़ क्राइंग। तो द पोइट ही सेज दैट कि नाइट इज़ जस्ट एज सैड एज हिम। वो कह रहे हैं कि जो रात है वो उतनी ही दुखी है जितना कि मैं हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत अपसेट हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रात भी अपसेट है और इसी वजह से ये क्या कर रही है, ये रो रही है। और किस फॉर्म में रो रही है, बारिश की फॉर्म में रो रही है। तो इन दीज 2 लाइन्स द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू टीयर्स। ठीक है, उसे कंपेयर किससे किया है, टीयर्स से किया है, आंसुओं से। नाउ व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। हियर ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, कॉटेज चैम्बर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेडरूम, एंड पैटर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो छत पे गिरने वाली पानी की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, उसकी जो आवाज़ है उसे हमने कहा है पैटर। ओके, तो देन द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग। अब वो पोइट अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। ही फील्स वेरी हैप्पी व्हेन ही लाइज डाउन ऑन बेड एट नाइट टू गो टू स्लीप एंड ही इज लिसनिंग टू द रेन ड्रॉप्स विच आर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज बेडरूम। And this soft rain which is falling overhead on the roof is a sound that makes such a happiness to hear on such a sad night. तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो अभी तक दुखी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि नाइट भी मेरे साथ रो रही है, वो भी दुखी है मेरे साथ में। तभी जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है तो ही जस्ट स्टार्ट्स फीलिंग हैप्पी, यू नो, वो खुश होने लग जाते हैं। और वो बेड पर लेटे हुए हैं, नाइट टाइम है, तो वो बेड पर लेटे हुए हैं और अपने ही बेडरूम में से जब वो छत पर गिरती हुई आवाज़ को सुन रहे हैं, बारिश की जो पैटरिंग साउंड है उसको सुन रहे हैं, तो ही इज़ फीलिंग हैप्पी नाउ। अब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और ही कंसिडर द साउंड ऑफ रेन एज ब्लिस, कि वो कह रहे हैं कि बहुत ब्लिसफुल है, हैप्पीनेस है मिलती है जब वो बारिश को सुनते हैं। Now, second stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into wove as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, now the word meanings.
Tinkle, tinkle again the sound of rain. It is short, light, ringing sound. Shingles means rectangular wooden tiles used on roofs. You can see in the picture. Echo means repeated sound. बार बार जो दोहराना होता है, जो echo होता है, repeat हो रहा है sound, that is echo. Recollection here's memories of the past. यहाँ पर जो memories हैं past की उसे हम कह रहे हैं recollections. And woof मीन्स द थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम. जब हम लूम में, जो अपने पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो लूम होता है उसमें फैब्रिक को जो हम मूव करते हैं, जस्ट कि उनको वुवन करते हैं, वीव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये जो पैटर्न है दैट इज़ वूफ. ओके, एंड नाउ द एक्सप्लेनेशन. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. यहाँ पर poet हमें कह रहे हैं कि the sound of rain resonates in his heart, कि इनकी हार्ट में, मतलब ये जो रेन की आवाज़ है वो इतना ही अच्छी लग रही है एंड ही इज़ फीलिंग हैप्पी नाउ, और उनके हार्ट मतलब ये रेजोनेट कर रही है, इको हो रहा है, एंड हिज हार्ट रिस्पॉन्ड्स सेंसिटिवली टू द साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन. मतलब इनको ये हम कह सकते हैं सिंपली कि उन्हें अच्छा लग रहा है. एको in the heart means he is feeling happy and he is feeling relaxed when he hears the sound of tinkling on the shingles. जो shingles हैं, tiles हैं, जो छत पर जब पानी की आवाज़ आ रही है, बारिश की जब आवाज़ आ रही है, तो ये जो साउंड है वो उनको बहुत उनके हार्ट को रिलैक्स कर रहा है एंड वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी उनके हार्ट, मतलब उनके हार्ट और माइंड में कुछ मेमोरीज आने लग जाती हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. The poet, now busy being, ना busy being means the poet is a grown up person. अभी वो बड़े हो चुके हैं, तो he is very busy in his life, so he calls himself, the poet calls himself a busy being. Okay, तो वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि busy being. जनरली आप बिजी बीइंग को पीपल से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना. एज द पॉइट लिसन्स टू द साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, अ थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशंस पॉप अप इन हिज माइंड. कि जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं तो कई सारी ड्रीमी फैंसीज, मतलब इमेजिनेशंस, ड्रीम्स, मतलब उनको वो इमेजिन करने लग जाते हैं. A thousand recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Here, यहाँ पर poet क्या कह रहे हैं कि अलॉन्ग विद इमेजिनेशंस, यानी जो ड्रीमी फैंसीज हैं, इनके साथ में थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज आर ऑल्सो रिवाइव्ड इन हिज माइंड एंड हार्ट. वो कई सारी पुरानी याद, मतलब सपने ही नहीं, वो बहुत सारी पुरानी यादों में भी चले जाते हैं. एंड दे अपीयर एज अ वुवन वर्क इन द ईयर. और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना सपने बुनना, कि जिस तरह से फैब्रिक को लूम पे वीव किया जाता है, उसी तरह से ही स्टार्ट्स जस्ट वीविंग द पास्ट और द मेमोरीज, की जो उनकी मेमोरीज हैं उनको वो वीव करने लग जाते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ द वुवन वर्क इन द एयर, कि एयर में हम सपने बुन रहे हैं. मीन नाउ एज आई listen to the patter of the rain upon the roof, means all the things, his imaginations, his memories are getting triggered by the pattering sound of the raindrops. कि जैसे ही पानी की बूंदें, जो रेन ड्रॉप है, बार बार यही चीज़ें आ रही हैं कि जैसे ही बारिश होती है और पानी की बूंदें जो हैं वो उनकी छत पर गिरती हैं, पैटरिंग साउंड हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगेन उनका हार्ट जो है वो सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है. वो अपनी मतलब जस्ट वो ही स्टार्ट्स ड्रीमिंग, वो ड्रीम करना शुरू करते हैं, फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यही सब कुछ होता है when he listens to the patter of the rain upon the roof. Let's read the last stanza third. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me
as I list to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Okay, now the word meanings. Air is the ere. Air is the old poetic word for before. Air means before simply. Dawn means daybreak, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं. Dawn means daybreak, सुबह जो सनराइज का टाइम होता है. Fond means loving. List again the old poetic word for listen. तो list means listen. Refrain means a repeated part of a song. जैसे refrain जो यहाँ बार बार हम बात कर रहे हैं, the sound of rain. Okay. Now the explanation. Now in memory comes my mother as she used in years agone. Agone means in past. He used to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. In this stanza, the poet introduces his mother. जो मेमोरीज़ ये पास हमें बता रहे थे, जो इनके लास्ट स्टैंजा है कि कुछ मेमोरीज़ उनके दिमाग में आ रही हैं, तो वो अब क्लियर होता है कि वो मेमोरीज़ किन के बारे में है, वो उनकी मदर के बारे में है. एंड शी यूज़ टू कंसिडर हिम एज अ डार्लिंग. ना डार्लिंग वर्ड, जो डार्लिंग ड्रामा आया है, तो डार्लिंग मीन्स द पोइट हिमसेल्फ और द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स, की उनकी मदर जो हैं वो पोइट को और जो उनके दूसरे भाई बहन हैं उनको क्या कहती थी, डार्लिंग कहती थी. एंड शी वुड लेट देम स्लीप टिल डे ब्रेक. और वो चाहती थी कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी ना, जैसे एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. उसके बाद वो क्या करती थी, उन्हें रूम में सुला देती थी या हम कहें कि छोड़ देती थी ताकि वो सपने देख सकें, है ना. उनको मतलब जस्ट कंप्लीटली उनको रिलैक्स कर देती थी कि अब आप सोइए आराम से और सपने देखिए. ठीक है, तो मीन्स शी वुड लेट हिम sleep till daybreak so that he could have deep sleep and watch dream and oh feel her fond look on me. तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपनी मदर की लविंग जो लुक है उनका, तो उसको फील करते हैं. एंड ही कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम. As I listened to the refrain, when he listened to sound of rain, he feels that his mother is looking at him, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Again, the sound of the rain makes the which is making upon the रूफ, जो छत पर जो शिंगल्स पे जो टाइल, शिंगल्स अगेन द टाइल्स, कि शिंगल्स पे जो पैटरिंग साउंड है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें याद दिला रहा है. द साउंड ऑफ द रेन मेक्स द पोइट को रिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट. ओके, now let's discuss the rhyming scheme and poetic devices of this poem. Let's start with rhyming scheme. As you know that for rhyming scheme we just identify the last word of each line. In this poem there are 3 stanzas having 8 8 lines each. यहाँ पर 3 stanzas हैं और हर stanza में 8 lines हैं. And in all the stanzas rhyming scheme is same, so we will discuss the only one. Now identify. Now the first is hover. Sphere is not rhyming with hover. So as we know that the rhyming scheme is always starts with small letter a, तो हमने इसे दे दिया है a. Now the spheres is not rhyming with b, तो हम इसे दे देंगे जो लेटर हो जाएगा इसके लिए b. Okay, now darkness is not rhyming with either hover or sphere, so it will be given c. Tears is rhyming with the spheres, that is why it will be given again b. Pillow is not rhyming with above all the words, तो above जितने भी हैं words इनके साथ rhyming नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम देंगे letter d. Now bad is not rhyming with other, so it will be given e. Patter is not rhyming with
any of the word, तो हमने लिखा B, and overhead is rhyming with bad, so it will be given E. तो rhyming scheme of the poem will be A B C B D E F E. Okay. Now we'll see the first literary device which is used in this poem, that is alliteration. तो हम इसे स्टैंजा वाइज ना देखकर ये कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो बहुत रिपीट हो रही हैं बार बार, तो हम इसको स्टैंजा वाइज ना देखकर कंप्लीट पोएम में ही देख रहे हैं। तो वॉट अलिटरेशन जो हमने रोड नॉट टेकन और सभी पोएम्स में भी पहले देखा है, तो द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो जो नियरर वर्ड्स होते हैं उनमें जो साउंड अगर रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं अलिटरेशन। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में है ह्यूमिड हॉवर, एच साउंड रिपीट हो रहा है, देन स्टारी स्फीयर्स, एस साउंड रिपीट हो रहा है, प्रेस द पिलो, पी पी, per sound repeat हो रहा है, now the l sound is repeating, now the b and th, their ear threads, so th sound is repeating here, now the rain upon the roof, so r sound is repeating, then memory comes my mother, m sound is repeating, and dear daring dreamers, so sorry darling dreamers, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है डी साउंड। इसी तरह से काफ़ी और वर्ड्स हैं जहाँ पर ऐसी लाइन्स हैं जहाँ पर साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अलिटरेशन। नाउ the next literary device, that is onomatopoeia, means the use of sound words to create dramatic effect in a poem, or it can be said ऑडिटरी इमेजरी। यहाँ पर जैसे आप फील करते हैं, यहाँ पे जैसे टिंकल और पैटर वर्ड है, तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि साउंड पैटरिंग साउंड है ना, पैटर, तो हम स्टार्ट कर देते हैं फील करना कि पैटर का आवाज़ जैसे टप टप टप, तो ये हम लोग फील करना शुरू कर देते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पैटर है तो वो थोड़ा सा लाउड होगा, टिंकल है तो थोड़ा सा कम साउंड होगा। तो ये जो ओनोमैटोपिया है वो क्या है कि इमेजरी है और ऑडिटरी इमेजरी है, और इसमें साउंड वर्ड्स को यूज़ किया जाता है ताकि पोएम में किसी मतलब साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जा सके, ड्रामेटिक इफेक्ट करके उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। नाउ द पर्सोनिफिकेशन, यू ऑल नो अबाउट वेरी वेल पर्सोनिफिकेशन, when the human-like qualities are given to inanimate objects or animals, non-living things, तो हम उसे कहते हैं personification. Here darkness is said, तो darkness cannot be said, darkness दुखी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर in the line darkness is personified, darkness को personify किया गया है, so this is the example of personification. Again the recollections weave dreams, recollection में memories weaving नहीं कर सकती हैं, weaving is the work of human being, तो यहाँ पर जो रिकलेक्शन के लिए वीव आया है कि वो वीव कर रहे हैं, तो अगेन रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड हियर, दैट इज व्हाई बोथ डार्कनेस एंड रिकलेक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. Transferred epithet. Transferred epithet means when human feeling is transferred to non-living things, in simple words, or the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. इसको हम विद एग्जाम्पल ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे यहाँ पर वर्ड है melancholy darkness. melancholy means sad, adjective, and darkness night मीन्स नाउन. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो नाउन है डार्कनेस है वो melancholy है, वो दुखी है. तो क्या रात दुखी है? नहीं. तो एक्चुअली ये जो melancholy वर्ड है वो यूज़ हुआ है पोइट के लिए. वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पोइट के लिए. मतलब जो एडजेक्टिव पोइट के साथ यूज़ होना चाहिए था उसे हमने यूज़ किया है नाउन, ये नाइट के साथ में, डार्कनेस के साथ में. तो यही हमने यहाँ पर देखा कि व्हेन a noun, when an adjective with a noun refers to the another noun, यानी melancholy जो कि poet के साथ आना चाहिए उसे हमने यूज़ किया है darkness के साथ. तो इसे हम क्या कहेंगे? Transferred epithet. Let's see the another example. Dreamy fancies. Dreamy again adjective and fancies जो है वो है noun. ठीक है. तो ड्रीमी कौन है? सपने कौन देख रहा है? अगेन द पोइट इज ड्रीमिंग. तो फैंसी के साथ नहीं आना चाहिए था. ड्रीमी किसके साथ होना चाहिए था?
ये नाउन होना चाहिए था पोइट, ना कि फैंसीज। तो अगेन जो है कि एडजेक्टिव किसी और नाउन के साथ में यूज़ किया गया है, तो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंजाममेंट, एंजाममेंट मीन्स रनिंग लाइन्स फ्रॉम वन to the next without using any kind of punctuation. तो means when in a stanza no punctuation mark is used at the end of a line, it is called enjambment. ये examples हम पोएम में देख चुके हैं द विंड में, कि जब एक लाइन है उसमें बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के वो कंटिन्यू रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाममेंट कहते हैं। ओके, जैसे कि हम स्टैंजा फर्स्ट में देखते हैं कि जो आप ये एंजाममेंट पूरी पोएम में आपको मिलेगा, लेकिन हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं कि स्टैंजा वन में यहाँ पर होवर के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, स्फेयर्स के बाद में नहीं है, डार्कनेस के बाद में नहीं है, डायरेक्ट पंक्चुएशन मार्क यूज़ हो रहा है टीयर्स के बाद में। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द हियर एंजाममेंट इज़ यूज। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ इमेजरी। यहाँ पे पोएम में कई सारी इमेजरी हमने यूज़ की, ऑडिटरी भी था। और व्हेन इमेजरी, व्हाट इज़ इमेजरी, इट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। तो यहाँ पर जब आप सुन रहे हैं ना, इसमें काफ़ी सारी इमेजरी यूज़ की गई है, जैसे विजुअल इमेजरी भी है और ऑडिटरी भी है। विजुअल मतलब जब आप देख रहे हैं कि कॉटेज है, कॉटेज के बेड पे आप लेटे हुए, वो पोएट लेटे हुए हैं, पिलो है और बाहर बारिश हो रही है, द क्लाउड्स आर होवरिंग, क्लाउड होवर कर रहे हैं, और जो पेटर का साउंड हो रहा है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इमेजरी के। और मेटाफर यहाँ पर काफ़ी बार यूज़ हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था।